Good afternoon to all of you. This is Mainuddin Khan from Civil Department. Today I will discuss quantity surveying and valuation, center line method and long wall and short wall method. Method of detail estimate for symmetrical footing, which is the usual case earthwork in excavation in foundation concrete brickwork in foundation and plane and brickwork in superstructure may be estimated by either of the two methods. डिटेल एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए हमें दो मेथड का यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ होता है सेपरेट और इंडिविजुअल वॉल मेथड, सेकंड सेंटर लाइन मेथड या फिर बोलते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड. क्वांटिटी सर्विंग एंड वैल्यूएशन, क्वांटिटी सर्वे हम मेजरमेंट करते हैं. ठीक है, किसी भी क्वांटिटी वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस ऑफ आइटम्स बिल्डिंग के अंदर जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअल हमें क्या है उसका मेजरमेंट करना होता है या फिर उसकी कॉस्ट टोटल कॉस्ट बतानी होती है, मेजरमेंट करना होता है. Center line method, in this method total length of the center line of wall, long wall and short wall has to be found out. सेंटर लाइन मेथड में हम क्या निकालते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकालते हैं फॉर लॉन्ग वॉल के लिए. सिमिलरली शॉर्ट वॉल के लिए पार्टीशन वॉल होती है, एक लॉन्ग वॉल होती है. फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कंक्रीट लाइंस ऑफ वॉल ऑफ सेम टाइम हैविंग सेम टाइप ऑफ फाउंडेशन फुटिंग एंड देन find the quantities by multiplying the total center length by the respective breadth and the height. We can say center line method. In this method we can find out the quantity of the each various types of materials and rates. In this method the length will remain the same for excavation foundation, for concrete and foundation, for all footing and for superstructure with slight different with there are cross wall or numbers of junctions. This method is quicker but requires special attention and consideration at the junction meeting point of partition of cross wall. We can say in this diagram, okay, long wall and short wall. In this type, in this area, it is called long wall. In this area, it is called short wall or partition wall. Say in this distance, it is called center to center distance for long wall. In this distance, center to center distance for shorter wall. And in this distance, it is called out to out distance for long wall. And in this distance, corner to corner, it is called end to end for short wall. You can calculate the quantity of various construction items using the above method for different building dimensions. Long wall and short wall method is used for finding out the quantities and cost of material. Long wall and short wall method जिसको हम बोलते हैं PWD method. PWD public work demand, public work public work demand. It is called find out the quantity of the cost of material. This method is simply and accurate. इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसमें जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वो क्या था, एक्यूरेट होता है. सो देयर इज मे बी नो चांस ऑफ एनी मिस्टेक. जो भी हम प्रोजेक्ट का हम डिटेल एस्टिमेट निकाल रहे हैं, उसकी क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं या अदरवाइज उसका रेट्स निकाल रहे हैं, उसमें क्या बहुत कम चांस होते हैं, उसको एरर कम होते हैं जब उसको हम बिल प्रिपेयर करते हैं. बट करेक्टली चूज लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल फॉर फाइंडिंग आउट द एक्यूरेट क्वांटिटी. और हम क्या करते हैं, उससे शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल से क्या एक्यूरेट क्वांटिटी निकाल देते हैं, उससे एरर की बहुत कम चांस होता है. Estimate is the method for finding out the quantity of the various construction item. Estimate क्या होता है, find quantity में वेरियस कंस्ट्रक्शन आइटम को, मटेरियल को हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, उसको हम एस्टिमेट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं. द रिक्वायर्ड डायमेंशन, उसमें जो डायमेंशन रिक्वायर होती है उसकी लेंथ, ब्रेथ, विड्थ एंड डेप्थ और हाइट, उसकी डेप्थ और हाइट आर बी टेकन आउट फ्रॉम द ड्राइंग. हम क्या ड्राइंग से लेते हैं, प्लान से लेते हैं, एलिवेशन से लेते हैं, सेक्शन से लेते हैं. सारी डायमेंशन क्या मेजर गिवन होती है, उससे हम क्या मेजर कर लेते हैं जिससे कि हम उसकी क्वांटिटी निकाल सकते हैं. व्हेन यू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट यू विल बी स्टडी द ड्राइंग. जब हम कोई भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो हम एस्टिमेट करने के लिए हम उस ड्राइंग को रीड करते हैं. ठीक है, इमेजिन करते हैं बिल्डिंग पिक्चर इन योर माइंड. अपने माइंड में क्या कर लेते हैं, उसको इमेजिन कर लेते हैं. एंड द डायमेंशन आर टू बी टेकन करेक्टली. तो जितनी भी डायमेंशन है क्या करेक्टली उसको हम ले लेते हैं जिससे कि हमारा मेजरमेंट क्लियर होता है. सिविल इंजीनियर फॉलो यूनिट्स आर यूज. सिविल इंजीनियर के अंदर बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसको हम यूज करते हैं. जैसे फॉर लेंथ के लिए हम मीटर में यूज करते हैं. फॉर एरिया स्क्वायर मीटर होता है. फॉर वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर m⁻3. फॉर क्वांटिटी केजी में लेते हैं. फॉर काउंटिंग नंबर से नोज में लेते हैं. ब्रिक्स हमारे नोज में लेते हैं. और सीमेंट हम बैग्स में लेते हैं.
बिल्डिंग एस्टिमेट हम देख सकते हैं, हम बिल्डिंग एस्टिमेट लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से हम बिल्डिंग एस्टिमेट करना किसी भी चीज का। There are number of cost estimation method for a calculation. The quantity like earthwork, foundation, concrete, brickwork in plinth and superstructure, but mainly below two methods are used: long wall and short wall method, center line method. Here we discuss long wall and short wall cost estimation method. Long wall and short wall method for the calculating quantity of various construction items. Long wall and short wall method is used. कोई भी क्वांटिटी डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन आइटम के लिए हम क्वांटिटी मेजर कैलकुलेशन करने के लिए हम लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड का यूज करते हैं। ठीक है। फॉर मेजरिंग द लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, द एक्सटर्नल आउट टू आउट लेंथ ऑफ वॉल रनिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन जनरली इज कंसिडर एज लॉन्ग वॉल, while in this in to in internal length of the wall running in the transverse direction is called short wall or cross section, और बोल सकते हैं partition wall. For calculating quantities, multiply the length into the breadth and height of the wall as shown in the diagram. We indicate long wall and short wall, and center line indicate with the red line. For finding out the length of the long wall, simply and center line of the wall two times half breadth on the one side of the wall, which give the outward length of the long wall. जैसे हम इसमें देख सकते हैं एक रूम प्लान दे रखा है 5 मीटर बाई 4 मीटर, लेंथ दे रखा है इसके 5 मीटर, और शॉर्ट वॉल दे रखा है 4 मीटर, और इसकी जो वॉल थिकनेस है वो दे रखा है 30 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.3 मीटर। अब ये लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल हमको क्या है इसका पहले डिस्टेंस निकालना फॉर लॉन्ग वॉल के। जब हम डिस्टेंस निकालेंगे फॉर लॉन्ग वॉल के लिए तो क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फॉर लॉन्ग वॉल 5 मीटर प्लस 1 विड्थ ऑफ वॉल 0.3, तो 5.03 हो जाएगा, राइट। फॉर शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ फॉर शॉर्ट वॉल तो क्या हो जाएगा 4 मीटर बाई 4 मीटर प्लस 0.3 मीटर इज इक्वल टू 4.3 मीटर फॉर शॉर्ट वॉल। We can here length of the long wall, center to center length of wall plus half breadth of one side plus half breadth of other side is equal to center length of wall plus one breadth. For finding out the length of shorter wall or cross section wall, subtract from the center length so that the one breadth of the wall which gives the length of the shorter wall instead of adding. We can say दोनों में difference of long wall and short wall. For long wall के लिए center to center distance and वन विड्थ ऐड करते हैं, एंड फॉर शॉर्टर वॉल के लिए लेंथ ऑफ शॉर्टर वॉल के लिए सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, उसमें क्या हो जाता है डिडक्शन हो जाता है, विड्थ का डिडक्शन, वन साइड ऑफ वॉल ऑफ डिडक्शन ब्रेथ का क्या हो जाता है डिडक्शन हो जाता है। The length of the long wall usually decrease from the earthwork to brickwork, and the length of the short wall is increased. Here we give example of long wall and short wall method. This is plan and this is section. 5 by 4 meter short wall and long wall, or thickness of wall 0.3 meter. This is section. Excavation in foundation 0.9 meter, height of foundation 0.9 meter, first footing 0.6 meter, height of first footing 0.3 meter, second footing 0.5 meter, height of second footing 0.3 meter, and plinth area third footing 0.4 meter, height of plinth 0.6 meter. And above the structure is it called superstructure. Width is 0.3 meter and height is 3.5 meters. यूजिंग द अबो इमेज या अबो क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंडिंग करते हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल लेंथ निकालते हैं। तो सेंटर टू सेंटर लेंथ फॉर लॉन्ग वॉल अभी मैंने बताया था 5 प्लस हाफ ऑफ वन साइड विड्थ प्लस हाफ ऑफ अदर साइड विड्थ इज इक्वल टू 5.3 मीटर। सेंटर टू सेंटर लेंथ फॉर शॉर्ट वॉल तो 4 प्लस हाफ साइड ऑफ वन विड्थ प्लस हाफ side of other width is equal to 4.3 meter. After finding out the length of the long wall and short wall, now find the quantity of the various items which are used in construction. ठीक है। फर्स्ट ऑफ केस डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी। किसी भी बिल को तैयार करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होता है जिसमें हमारा फर्स्ट होता है सीरियल नंबर, उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन या पर्टिकुलर आइटम्स ऑफ वेरियस डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क बोल सकते हैं। उसके बाद नोज का मतलब आइटम्स कितने आइटम्स की रिक्वायर्ड है, कितने नंबर्स हैं। उसके बाद मेजरमेंट में होता है लेंथ इन मीटर, ब्रेथ इन मीटर एंड हाइट और डेप्थ इन मीटर। क्वांटिटी एल इंटू बी इंटू एच तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वांटिटी निकल जाएगी इन मीटर क्यूब। उसके बाद रिमार्क या नोट, जो हम लेंथ हम चेंज करते हैं वो हम रिमार्क में ले लेते हैं। फर्स्ट केस है हमारा एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन। एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन के लिए केस फर्स्ट फॉर लॉन्ग वॉल के लिए जो डायमेंशन दे रखी है
इसमें दे रखा है एक्सकेवेशन फाउंडेशन, एक्सकेवेशन फाउंडेशन हमने लेंथ निकाल लिया है, इसकी जो विड्थ दे रखी है 0.9 मीटर और हाइट कितना दे रखा है 0.9 मीटर। ठीक है, तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितना है 2, लेंथ 6.20, विड्थ 0.9 मीटर, हाइट या डेप्थ 0.9 मीटर। एल इंटू बी इंटू एच, क्वांटिटी निकल जाएगी, उसके बाद मल्टीप्लाई कर ली 9, तो 10.04 मीटर क्यूब। फोर सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल नंबर्स हो जाएंगे 2, लेंथ 3.4 मीटर, विड्थ 0.9 मीटर, डेप्थ 0.9 मीटर। क्वांटिटी निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5.51, इसका टोटल सम कर देंगे तो एक्सकेवेशन इन फाउंडेशन, उस फाउंडेशन के लिए कितना हमें टोटल लेंथ मिल रहा है 15.55 मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड केस है कंक्रीट इन फाउंडेशन। अब उसके अंदर पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट कितना है, उसके लिए हमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल से हमें टोटल क्वांटिटीज बताना है। तो 4 लॉन्ग वॉल के लिए कितना नंबर्स हो जाएगा 2, लेंथ अब इसमें हमें देखना है, डायग्राम में देखना है जो इसकी थिकनेस है वो कितना है, सॉरी विड्थ है 0.9 मीटर, लेकिन हाइट क्या है 0.3। अब पीसीसी इसकी बात हो रही है, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, बी इक्वल टू 0.9 मीटर और हाइट इक्वल टू 0.3 मीटर। वो लॉन्ग वाले के लिए लेंथ हो जाएगी 6.2 मीटर, उसमें ऐड कर देंगे उसकी विड्थ, उसके बाद विड्थ 0.9 मीटर और इसमें हाइट 0.3 मीटर, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 3.35 मीटर। और फॉर शॉर्ट वॉल सिमिलरली सेम करना है, नंबर्स हमारा 2 हो जाएगा, लेंथ माइनस हो जाएगी उसमें से, उसकी विड्थ माइनस हो जाएगी जो हमने टोटल लेंथ निकाली सेंटर टू सेंटर लेंथ। उसके बाद हाइट 0.3 मीटर, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, टोटल सम कर देंगे सेंटर इन फाउंडेशन, टोटल डिस्टेंस क्वांटिटी जाएगी 5.18 क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब। थर्ड केस है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब इसमें हमें बताना है जो ब्रिक वर्क हमारा यूज हो रहा है फाउंडेशन के अंदर एंड प्लिंथ के अंदर, उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग के लिए अलग अलग निकालना है। तो लॉन्ग वॉल के लिए फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग और प्लिंथ, अभी हम वी कैन से दिस इज फर्स्ट फुटिंग, दिस इज सेकंड फुटिंग, दिस इज थर्ड फुटिंग और प्लिंथ। फर्स्ट फुटिंग विड्थ इक्वल टू 0.6 मीटर, हाइट इक्वल टू 0.3 मीटर। सेकंड फुटिंग विड्थ इक्वल टू 0.5 मीटर और हाइट इक्वल टू 0.3 मीटर। प्लिंथ और थर्ड फुटिंग विड्थ इक्वल टू 0.4 मीटर और हाइट इक्वल टू 0.6 मीटर। कैन वी कैन सोल्व फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग एंड प्लिंथ वॉल फॉर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल। टोटल ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन कितना आ जाएगा 10.94 मीटर क्यूब। लास्ट केस इज ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। अब जो ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल उसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर वर्क स्टार्ट किया गया है तो उसके अंदर हमें क्या करना है, उसका हमें क्वांटिटीज बतानी है लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से, राइट। तो सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं जो प्लिंथ लेवल से ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका विड्थ है 0.3 मीटर और हाइट है 3.5 मीटर। इसको हमें सोल्व करना है फॉर लॉन्ग वॉल के लिए, फॉर शॉर्ट वॉल के लिए। तो फॉर लॉन्ग वॉल नंबर्स 2 हो जाएगा, ठीक है, जो हमने सेंटर टू सेंटर लेंथ लगा दी उसमें क्या उसकी विड्थ से उस विड्थ को ऐड कर देंगे। उसके बाद हाइट कितने दे रखा है 3.5 मीटर फॉर सुपर स्ट्रक्चर, सबकी मल्टीप्लाई करने के बाद 11.76। उसके बाद फॉर शॉर्ट वॉल नंबर्स 2 हो जाएगा, उसकी जो डायमेंशन दे रखी है कितना 4 मीटर, लेंथ माइनस कर लेंगे उसमें से विड्थ में से तो 4 मीटर लेंथ आ जाएगी। उसके बाद विड्थ उसकी 0.3 मीटर, हाइट 3.5 मीटर, टोटल करेंगे तो 8.4 मीटर। इन दोनों का सम कर लेंगे 20.16 मीटर क्यूब क्वांटिटी। So you can calculate the quantity of various construction item using the above method for different building dimension। इससे क्या हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स का क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर जब हमें डायमेंशन मेजर गिवन होती है। तो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट द क्वांटिटीज। लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड इसको बोलते हैं आउट टू आउट और इन टू इन मेथड। हमें यूज करते हैं किसे क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए, क्वांटिटी निकालने के लिए एंड कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल की इंडिविजुअल कॉस्ट निकालने के लिए। दिस मेथड इज सिंपल एंड एक्यूरेट। ये मेथड कैसे होता है, सिंपल होता है, एक्यूरेट मेथड होता है। सो देर इज मे बी नो चांस फॉर एनी मिस्टेक, कोई भी चांस नहीं होता उसमें मिस्टेक करने के लिए। थैंक यू।